Hi everyone. Today we are going to discuss about pair of angles. Okay, this is the part of class 9 and chapter that is the line and angles. So this is a very important part and then this is a very important topic also. Okay, so let me explain the what is a pair of angles. Pair of angles means just we can say like adjacent angle, vertically opposite angle, corresponding angle, alternate angle, like this way. Okay, so let me explain the terms of pair of angles. pair of angles Pair of angles. So we will study about the pair of angles by two ways. Okay, we will study about the pair of angles about there are two ways. One on the basis of parallel lines and on the basis of, we can say, non-parallel lines. Okay, so we will study pair of angles by two ways. First, that is parallel lines. On the basis of parallel lines, and next on the basis of non-parallel lines. On the basis of non-parallel lines. Okay, students. Then, in the case of non-parallel lines, some angles you can observe. First, that is here is LPA, linear pair of angles. Next, VOA, that is the vertically opposite angle. Next is LPA, vertically opposite angle. Next is adjacent angle A. Okay, so linear pair angles, vertically opposite angles, and adjacent angles. We will study all of the angles one by one. Okay, in the case of LPA stand for linear pair of angles, you can say linear pair of axioms, you can say. V stand for vertically opposite angles, and here is the adjacent angle. Okay, I already explained the terms of LPA in my previous lecture. You can see, I will give link in the description box. Okay, so and so many corollary regarding the LPA. Okay, so let me explain. Today we will discuss about vertically opposite angle. I already explained the adjacent angle in my previous lectures. So you should, if you want to know about what is the adjacent angles, then you should go through my description box and please see my previous video. And in the case of parallel lines, you have some options like alternate interior angle, alternate interior angle, alternate interior angle, exterior angle also, alternate exterior angle and alternate interior angles. Next, number 2, that is the cross bonding angles. Next, that is the cross bonding angles. Next, number 3rd, one is alternate, next is corresponding, and we can say co-interior angles. Okay, co-interior angles. Okay, so this is the basic एंगल्स मीन्स इन दिस केस मीन्स इस केस में हम लोगों को एक दो चीज़ जरूर हम लोगों को चाहिए, एक पैरेलल लाइंस चाहिए और एक ट्रांसवर्सल लाइन चाहिए, तभी हम लोग ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए हम लोग को दो कंडीशन चाहिए। सबसे पहला कंडीशन हम लोग को चाहिए कि वो पैरेलल लाइन दिया हुआ हो, और अगर पैरेलल लाइन दिया हो तो ये सारे ऑप्शन हम लोग के पास सामने आएगा, और अगर पैरेलल लाइंस है तो ये सारा ऑप्शन तो आएगा, इसके साथ ये सारा भी ऑप्शन आ सकता है। लेकिन अगर नॉन पैरेलल लाइंस दिया हुआ
तो ये सारा ऑप्शन बंद रहेगा, आपका सिर्फ ये सारा चीज़ आएगा, LP आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल आएगा और एडजेसेंट एंगल्स आएगा। ओके स्टूडेंट, सो यू शुड go through this mind map of the pair of angles. That is a very important part. And second mind map, that is I will discuss here. Next point, that is अगर कोई क्वेश्चन में आपको पैरेलल लाइन प्रूफ करना है तो आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा। मतलब अगर आप अल्टरनेट एंड रियर एंगल आप उसको इक्वल शो कर रहे हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल शो कर रहे हैं, तो अगर कोई इंटीरियर एंगल वहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है तो हम लोग उसको पैरेलल लाइंस बोलेंगे। मतलब पैरेलल लाइन अप्रोच दिस एंगल एंड दिस एंगल आल्सो अप्रोच दिस। यू कैन से सपोज हियर यू कैन ऑब्जर्व हियर कि ये जो तीनों एंगल होगा ये किसको अप्रोच करेगा, ये अप्रोच करेगा ये किसको, ये इसको अप्रोच करेगा, और ये पैरेलल लाइन किसको अप्रोच करेगा, इसको अप्रोच करेगा। यानी वाइस वर्सा होता है। पैरेलल लाइन दिया होगा अगर ये सारा ऑप्शन खुलेगा, और अगर ये सारा में से कोई एक दिया हो तो वो पैरेलल लाइन के लिए कॉन्सेप्ट हम लोग को देगा। तो ये आप लोगों को हमेशा दिमाग पे रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे देता है, मैं एक सिंपल क्वेश्चन बता देता है आपको, एक थोड़ा सा ये आपको समझ में नहीं आए तो इसके लिए भी एक थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें थोड़ा डिस्कस करते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें रहता है। ये सपोज एक लाइन दिया हुआ, ये पैरेलल दिया हुआ नहीं दिया हुआ तो उसमें कुछ हम लोग को पास कोई ऑप्शन नहीं कि ये पैरेलल है कि नहीं, लेकिन ये है जैसे ABCD, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन, और ट्रांसवर्सल लाइन में ये क्या दे दिया है, एंगल 1 इक्वल्स टू क्या दे दिया, एंगल 2 ये दे दिया होगा। ठीक है, तो ये एंगल जो दे दिया है तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अब यहाँ पे देखिए अगर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है तो ये आपको हम बताएंगे ये क्या है, ये एंगल 1 और 2 है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। ठीक है, तो ये किसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर आ गया तो ये किसको अप्रोच करेगा, पैरेलल लाइन को अप्रोच करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये भी चीज़ पैरेलल टू क्या है, CD। ओके, सो आपको हम यही समझाना चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ों का इंपॉर्टेंस क्या है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर आपका एक पास हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, तो क्रॉस कोइंटीरियर एंगल्स हो तो आपको पैरेलल लाइन को अप्रोच करेगा, और अगर पैरेलल लाइन दिया हुआ हो तो ये सारे एंगल को अप्रोच करेगा। इन द केस ऑफ नॉन पैरेलल लाइंस, फर्स्ट LPA linear pair angles, linear pair angles you can say it depend upon you, vertically opposite angles, and AA that means the adjacent angles। okay, that is a very important part। और LPA हम लोग को लीनियर पेयर एंगल्स यहाँ पर भी हम लोग को एप्लीकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारी जगह जो है लीनियर पेयर एंगल्स का एग्जिस्ट होता है। जैसे ये लाइन होगा, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर हो जाएगा, तो ये यहाँ पर भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यहाँ पर भी एग्जिस्ट होगा, और ये यहाँ पर भी एग्जिस्ट होगा। ठीक है, एडजेसेंट एंगल, तो ये इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वैसे कैटेगरी कर दिए पेयर ऑफ एंगल्स का कि आपको ताकि पढ़ने में जो हो अच्छा हो, कोई और प्रूफ करने में ज्योमेट्रिकल चीज़ों को अच्छे से आप समझ सकें। ठीक है, तो ये नॉन पैरेलल लाइंस का जो भी कॉन्सेप्ट है, नॉन पैरेलल लाइंस का मतलब ये जरूरी नहीं कि अगर नॉन पैरेलल लाइंस ही हो, यहाँ पे अगर पैरेलल लाइंस भी होगा ना तो फिर भी ये अप्रोच करेगा, इसमें ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं जैसे ये एंगल 1 = 3, तो ये पैरेलल लाइन में तो ये पैरेलल लाइन तो है, तो इसके बाद भी ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये मतलब ये सब के लिए हम लोग को कंडीशन क्या चाहिए, एक लाइन चाहिए और एक रेखा चाहिए। मीन्स यू कैन से ये this is we need here parallel line, sorry एक one line and ray, हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, लाइन एंड रे चाहिए। और यहाँ पे पैरेलल लाइंस के लिए हम लोग को क्या अप्रोच करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए यहाँ पे पैरेलल लाइंस चाहिए, और क्या चाहिए, ट्रांसवर्सल लाइन चाहिए। सो ट्रांसवर्सल लाइंस, सो ये आपको दिमाग पे रखना पड़ेगा कि ये कैसा, ये आपका क्वेश्चन का नेचर कैसा है, और क्वेश्चन का नेचर के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं आज, मतलब ये क्या कहते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे हम जो है से वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये क्या होता है और इसको हम लोग कैसे क्या कहते हैं एप्लीकेशन करना है क्वेश्चन में। सबसे पहले हम ये वाला पार्ट को एप्लीकेशन करने सिखाएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि नॉन पैरेलल लाइन वाले कॉन्सेप्ट को हम एप्लीकेशन तीनों एक साथ में सिखाएंगे। उसके बाद पैरेलल लाइन की थ्योरी को हम बताएंगे आपको, और उसके बाद आपको जो है इसके कॉन्सेप्ट को बताएंगे, और उसके बाद पैरेलल लाइन पे भी उसको हम लोग आगे एप्लीकेशन करने लगेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स पेयर ऑफ एंगल्स का थ्योरी में। ठीक है, उसके बाद जो ये लाइन एंड एंगल्स का क्लास 9 का जो है ये टॉपिक है, और इसके पहले जो टॉपिक है हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है,
तो और ये अगर आप मेरे वीडियो पे जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, सारी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।